Hello and Assalamu alaikum. Good afternoon. My name is Harun Sajjad. I hope you all are doing well and keeping safe in these tough and difficult times. This is a different kind of setup. हम लोग आज remotely connected हैं for the 3-day undergraduate testing workshop. But rest assured, we will make sure that despite going for an online workshop, we will try and make it as useful for you as every other year. So हम लोगों ने 3 दिन साथ स्पेंड करने हैं, सो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया दैट आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ अ बिट, ताकि हमारी एटलीस्ट एक वर्चुअल सेटिंग के अंदर ही एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए. So if I talk about myself, नाम मैंने बताया, हारून सजाद. I am a graduate of LUMS. I graduated back in 2014 as an electrical engineer. Right after graduation, I started working in the education sector until I came back to LUMS again, but this time for an MBA program. So I'm an alumnus from LUMS not once but twice. Then I completed my MBA in 2018. So standardized testing, SAT math, ये सारे मेरे area of expertise हैं, and this is something that I really enjoy doing. I had a perfect score in SAT math, GRE GMAT math. So basically, I'm a math specialist, and I've been doing this from the platform of the Student Factory for the past couple of years. So what we're going to do today is that in the next 3 days, I'm going to give you a detailed overview of what the SAT is. I'll be talking specifically about the math portion, and then the English trainer will talk about the English portion. But we'll try and keep it connected and as synchronized for you as possible. So without further ado, what I'm going to do today is I am going to share my slides, and then I will share the agenda for today, and then we can cover a lot of different things today. Great. So shortly, you should be able to see my screen. And here we are. Okay, great. So what's the agenda for today? सबसे पहले we will be talking about what the SAT is. थोड़ी सी holistic picture, the big picture view कि SAT क्या होता है, क्यों चाहिए होता है. I'm sure some of you might have already taken the SAT, some of you must be planning. So मैं इसको इस तरह से cover करूँगा कि जितने भी आज हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हर किस्म की audience के लिए it will be a good overview of what the SAT is and why do you need it. Then of course I'll be jumping into specific details of what the SAT quant section is all about. So quant section, quant is the short form of quantitative. That's how we call it in the SAT. This is basically the math portion. So we'll try and look at इसमें कितने sections होते हैं, कितने सवाल आते हैं, कितना time होता है हमारे पास to attempt the questions that are given to us, और उसकी थोड़ी सारी details देखेंगे. Then I think the most interesting part for you all would be the third step, जिसको मैंने लिखा हुआ है preparation flow and shortcuts. So SAT की अगर मैं बात करूं, अभी हम इसकी डिटेल में भी बात करेंगे. SAT तो वही मैथ है, हाई स्कूल मैथ है, ओ लेवल मैथ है, मेट्रिक मैथ है, जो आपने हमने सब ने पढ़ी होती है. देन व्हाई इज इट कि SAT मैथ से सारे लोग इतना घबराते हैं? द रीजन इज कि जो सवाल हम लोग कन्वेंशनली 1 मिनट में, 1.5 मिनट्स में या 2 मिनट्स में करने के यूज टू होते हैं, the SAT demands us to attempt the same question in maybe 15 seconds, 10 seconds. So एक टाइम प्रेशर होता है, और इस टाइम प्रेशर को बीट करने के लिए what we're going to teach you in the next 3 days are shortcut techniques, टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे यू कैन सेव टाइम एंड अटेम्प्ट अ क्वेश्चन जो कि आप आमतौर पे 2 मिनट में करते हैं, उसको 10 मिनट्स में, इवन विदाउट द यूज ऑफ अ पेन एंड पेपर इन मोस्ट केसेस, आप किस तरह सॉल्व कर लेंगे. So this will be a very interesting, thought-provoking exercise for you all that we will go through in the next couple of minutes. Then, of course, we'll jump into our first topic for today, which will be ratios and proportions. ये एक bigger topic का part है, which we call as problem solving and data analysis. And in the end, we will try and summarize what we learned today, and then we will also take some questions from you guys as well. So if you have any questions during the workshop, मैं पढ़ा रहा हूँ, session के बीच में भी कोई सवाल आता है, तो please type it into the chat. My team will share the questions with me towards the end of the session, and I'll try and answer as many as I can. So let's start with the introduction to the SAT, what the SAT is all about. अच्छा, so SAT is a type of standardized test. Standardized test क्या होता है?
स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ये होता है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, इसको यूजुअली आप कह लें ज़्यादातर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग में आपकी बेसिक मैथ और एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट की जा रही होती है। दिस इज़ रिक्वायर्ड फॉर एडमिशंस इनटू यूनिवर्सिटीज़। व्हाई? यूनिवर्सिटीज़ को एसएटी क्यों चाहिए होता है? उनके पास आपकी और भी बहुत सारे क्रेडेंशियल्स मौजूद होते हैं, ओ लेवल्स का रिज़ल्ट होता है, एएस का होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर होता है, फिर एसएटी कहाँ हेल्प करता है? सो एज यू ऑल मे मस्ट बी अवेयर, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशंस आती हैं तो उसके अंदर बहुत डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं। किसी ने ए लेवल्स में साइंसेस ली होती हैं, किसी ने बिजनेस सब्जेक्ट्स लिए होते हैं। सो यूनिवर्सिटी को एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क चाहिए होता है। दिस इज हाउ ऑल यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ऑपरेट। उनको एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क चाहिए होता है जिससे वो सारे स्टूडेंट्स को एक ही पेज पे लाके असेस कर सकें। दे गिव देम अ लेवल प्लेइंग फील्ड। बेसिक मैथ है, बेसिक इंग्लिश है, सबको एक जैसी आनी चाहिए। Then they see how do you react under pressure, how do you react under time pressure। आपको 3.5-4 घंटे एक जगह पे बिठा के ढेर सारे सवाल दे दिए जाए, तो how resilient you are, how persistent you are, how much focused you are, these are the skills that they require for you, that they require you to have when you come to university as well। So this gives level playing field to all of you, and then आप इस पे आके university में जब apply करते हैं तो this helps them a lot। So it's a 3 hour 50। इसके अंदर ऐसे का पोर्शन ऑप्शनल होता है, बट इफ यू आर अप्लाइंग टू द लम्स अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम देन द एसएटी इज कंपल्सरी। सो 3 hours and 50 minutes इज द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट। इसके मेजर कंपोनेंट्स लाइक आई सेड मैथ एंड इंग्लिश होते हैं। सो अगर मैं पहले बुलेट पॉइंट की बात करूं, इट्स द एसएटी वर्बल आल्सो नोन एज एसएटी इंग्लिश। दिस इज फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू 2 different sections। इंग्लिश की ट्रेनर इसके ऊपर बात करेंगी। Then the second major component is the SAT quantitative section or the math section। This is broken down into the calculator and the non-calculator portion। दो sections होते हैं। So इसके बारे में भी अभी डिटेल देखते हैं। And then it's the essay। essay का स्कोर जो होता है वो सेपरेटली रिपोर्ट किया जाता है। So आपका SAT का टोटल स्कोर मैक्सिमम जो आ सकता है दैट इज 1600। मिनिमम जो आ सकता है दैट इज 400 एंड ऑब्वियसली द स्कोर रेंजेस फ्रॉम 400 टू 1600। एसएटी एसए का स्कोर सेपरेटली दिया जाता है। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इट वाज चेंज्ड इन 2016। उससे पहले नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु आर प्लानिंग टू अटेम्प्ट द एसएटी, रेस्ट अश्योर्ड, अगर कोई मतलब अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस दैट यू डाउटफुल अबाउट, आपको सही आंसर नहीं पता, तो इवन देन the process of elimination and guessing the smart guessing the right answer also makes a lot of sense। हम इस तरह की टेक्निक्स की आगे भी चल के बात करेंगे। Now, moving on to SAT mathematics or the quant portion, इसकी अगर हम specific details देखें, so as you can see, इसके अंदर दो sections होते हैं further। एक होता है कैलकुलेटर पोर्शन और एक होता है नॉन कैलकुलेटर पोर्शन। सो जो कैलकुलेटर पोर्शन होता है, इसके अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट 38 क्वेश्चंस एंड आपके पास 55 मिनट्स होते हैं। सो 38 क्वेश्चंस 55 मिनट्स, ये अप्रोक्सीमेटली बन जाता है 1.44 मिनट्स। सो 1.44 मिनट्स का मतलब तकरीबन आपके पास स्लाइटली लेस देन 1.5 मिनट होता है टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। सो ऑफ कोर्स इसमें कुछ सवाल ज़्यादा मुश्किल होते हैं, कुछ आसान होते हैं, तो आप उसको सॉर्ट ऑफ टाइम वहाँ से बैलेंस आउट करते हो। जो नॉन कैलकुलेटर पोर्शन होता है, इसके अंदर यू हैव टू अटेम्प्ट 20 क्वेश्चंस इन 25 मिनट्स। सो अगेन आपके पास स्लाइटली ओवर अ मिनट होता है सवाल सॉल्व करने के लिए। अभी हम कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी देखेंगे तो यू रियलाइज के देखने में ऐसा लगता है कि हर सवाल के लिए मुझे 2-2.5 मिनट चाहिए होंगे। आई नीड एटलीस्ट 3 minutes टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, but then you have to work smartly to see कि how can you manage your time and how you can attempt the same question in less amount of time। क्वेश्चंस की नेचर कैसे होती है? दीज आर ईदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसे एमसीक्यू होता है, उसकी 4 ऑप्शंस होती हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम स्टूडेंट प्रोड्यूस्ड रिस्पॉन्सेज भी कहते हैं, ग्रिड इन क्वेश्चंस के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे यू डू नॉट हैव एमसीक्यूज, ऑप्शंस नहीं होती, यू हैव टू मार्क द आंसर। सो जो मैं बात कर रहा था कि आप स्मार्ट गेसिंग कर ले, वो यहाँ पे इतना काम नहीं करती, बिकॉज यहाँ पे यू हैव टू राइट द आंसर, देयर आर नो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। इफ आई टॉक अबाउट द मेन टॉपिक्स जो एसएटी मैथ के अंदर टेस्ट किए जाते हैं, दे आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरी है, विच constitutes to 33% of the overall test, is called the heart of algebra।
The heart of algebra, in my opinion and in my experience, is one of the easiest topics out of the four that are mentioned on the slide right now. And it also covers the maximum portion of the test. So, I mean, it makes a lot of sense to really ace this part of the test because आपको एक तो पता है कि ये इसमें से सबसे ज़्यादा सवाल आएँगे और दूसरा आपको पता है कि ये आसान टॉपिक है। इस पे मैं कम एफर्ट डालूँगा तो रिज़ल्ट ज़्यादा नज़र आएगा। सो एफर्ट वर्सेस इम्पैक्ट वाला अगर आप रिलेशनशिप लगाएँ, it makes a lot of sense to focus on this particular part as well. Problem solving and data analysis जो second part है, this has to do with equations, word problems. कुछ लोग इससे बहुत घबराते हैं कि लंबी-लंबी word problems आ जाती है, age problems आ जाती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, डिस्टेंस स्पीड टाइम आ जाता है। सो आज मैंने इसीलिए हमारा जो फर्स्ट सेशन है, आई स्पेसिफिकली डेडिकेटेड इट टू दिस वन बिकॉज़ आई वांटेड टू ब्रेक द मिथ कि जी जो वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो बहुत लंबे सवाल आते हैं, उनको तो देख के मैं डर जाता हूँ। वो नहीं मेरे से सॉल्व हो सकते एंड 1.5 मिनट्स में नॉट एट ऑल। सो आई वांट टू ब्रेक दिस मिथ टुडे। I will show you how you can do it in 20 seconds, 10 seconds at times. We'll have a look at that. The third and the fourth is Passport to Advanced Math and the additional topics in mathematics. यहाँ पे आपके functions आ जाते हैं. I mean, don't be afraid of the buzzwords that I'm using. ये सारी वही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने I'm sure देखी होंगी. Functions आ जाते हैं, थोड़े बहुत graphs आ जाते हैं, and then इसके अंदर एक दो नए topics आएंगे, but those are also tested on a very कह लें basic level. So let's move on. Preparation flow. Acha, now we are officially diving into the math portion of the SAT. What I expect is that while you're attending this session, you have a piece of paper and a pen in front of you because I will be asking you to attempt a few questions with me. I will be asking you to take certain notes and to note down certain shortcuts. So मैंने भी रखा हुआ है and I hope आप सारों के पास भी कोई ना कोई pen and paper होगा. So like I say on the slides, it's all about shortcuts. एक सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. The question is up on the screen. Consider the following sequence: 5, 8, 11, 17, all the way up to 299. And the question is asking you to find the average of all numbers in the sequence. इसका जो suggested time है तकरीबन 10 सेकंड होता है. So मैंने आहिस्ता-आहिस्ता सवाल इसीलिए पढ़ा ताकि आप लोगों को 10 सेकंड मिल जाए. I'll still pause for another 5 seconds. I want you guys to think about it. Okay, 5 seconds हो गए. अब अभी I mean I can't directly interact this work with you all, but मतलब this should be a self reflection कि कितने लोगों से ये 5 या 10 सेकंड में सवाल सॉल्व हुआ. जिनसे हो गया है thumbs up, very good. जिनसे नहीं हुआ, this session is going to be very useful for you. सो अभी हम ये सारे टॉपिक्स, अभी मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ, हम ये सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे. सो डोंट बी अफ्रेड अगर मैं अभी आपको जल्दी से वॉक थ्रू दूं एक दो इसी तरह के और सवालों का, घबराना नहीं है बिकॉज वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन द कमिंग डेज एज वेल. बट इसको मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. अगर आपको ये सॉल्व करना होता तो आप इसको कैसे कर सकते थे. लेट मी जस्ट, अच्छा जी, सो हैव अ लुक एट द स्क्रीन. द फर्स्ट नंबर इज 5, द लास्ट नंबर इज 299. अब मैथ का एवरेज इसका रूल ये कहता है, इफ ऑल द नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस, इफ ऑल द नंबर्स आर इन अ सीक्वेंस, you take the first number which is 5 and you take the last number which is 299 और आप सिर्फ इन दोनों का एवरेज ले लें and this will give you the average of the entire sequence. So मैंने 5 का और 299 का एवरेज लेना है. एवरेज का यही मतलब होता है इनका मीन लेना है. इन अदर वर्ड्स इनको ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दूं सिंस दो नंबर्स हैं, सम ओवर नंबर ऑफ नंबर्स. सो मैंने 5 प्लस 299 ओवर 2 कर दिया, 304 ओवर 2, 152. दिस इज द एवरेज ऑफ द एंटायर सीक्वेंस. मतलब ये मेंटली भी हो सकता था. सो हाउ लॉन्ग डिड इट टेक? 5 seconds, 10 seconds? Let's have a look at another question and I want to challenge you all on this one as well. Given that Mr. A working alone can complete a task in 3 hours. एक बंदा है जिसको काम करने में 3 घंटे लगते हैं. Mr. B working alone can complete the same task. वही टास्क Mr. B जो है वो 2 घंटे में करता है अगर इंडिविजुअली करे. If A and B are working together, how long will they take?
अब सिचुएशन क्या आ गई है कि आपके पास एक बंदे का इंडिविजुअल टाइम था, दूसरे बंदे का इंडिविजुअल टाइम था। क्वेश्चन ये कह रहा है अगर उन दोनों बंदों को मैं एक ही रूम में ले आऊं एंड वो दोनों इकट्ठे काम करना शुरू कर दें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक? Suggested time for you on this one is 15 seconds. Let's see how many of you were able to do that. Do keep writing in your comments in the chat box as well. I will have a look at them later as well. So वर्क प्रॉब्लम्स, ये हमारा एक टॉपिक है जो हमने कल कवर करना है। इसका एक फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट टेक्निक है। आमतौर पे लोग इसको सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शन से, which is of course the right way, but it takes a lot of time and you don't have that amount of time on the SAT. So one of the shortcuts is कि अगर आपने दो लोगों का combined time निकालना है, कि अगर वो मिल के काम करेंगे इतना टाइम लगेगा, you simply take the product of their values of their individual times and you divide it by the sum of their individual times. So इस केस में उनकी इंडिविजुअल टाइम्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 टाइम्स 2 6 आ गया, और उनके इंडिविजुअल टाइम्स का सम क्या है, 3 + 2 5। सो 6/5 होता है 1.2। 1.2 hours is the time that they will take if they start working together. Simple. इसी तरह के हम कुछ और भी शॉर्टकट्स देखेंगे। Here's another one for you. Again मैं रिपीट कर रहा हूँ, we will cover all these in detail. अभी सिर्फ मैं आपको एक फ्लेवर दे रहा हूँ। Given that 2a is equal to 3b is equal to 4c is equal to 5d, find a ratio b ratio c ratio d. अब हम लोगों ने तो ओ लेवल्स में या मैट्रिक में या हाई स्कूल में 2 या 3 रेशियोज ही सीखे होते थे। अब ये 4 रेशियोज आ गए, हम क्या करें? और यहाँ पे लिखा आ रहा है कि मैक्सिमम 30 सेकंड्स के अंदर सजेस्टेड टाइम है, बल्कि मेरे ख्याल से 30 सेकंड्स भी थोड़ा एग्जैजरेटेड लिखा हुआ है। ये वाला तो आपसे 20 सेकंड में हो जाना चाहिए। सो देन हाउ डू वी सॉल्व दिस वन इन 20 सेकंड्स? इसका एक सिंपल सा तरीका होता है, अभी हम सेशन में कवर करेंगे। वो ये होता है कि आप सारे नंबर्स का एलसीएम ले लें। सो 2 3 4 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, 60 आ जाएगा। सारे नंबर्स को 60 से डिवाइड कर दें, न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो डिनोमिनेटर में चीजें रह जाएंगी वो आपका रेशियो होगा। आई एम गोइंग टू कवर अ डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन दिस वन इन अ कपल ऑफ मिनट्स। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं थी, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। हो सकता है ये लेस अमाउंट ऑफ टाइम में भी सॉल्व। दिस इज द लास्ट वन जो मैं अभी आप लोगों को एक फ्लेवर दे रहा हूँ। दिस इज द लास्ट ऑफ द लॉट फॉर नाउ। कि जी मेरे पास एक ट्राइंगल है। व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज दिस? तीनों साइड इक्वल हैं तो वी कॉल इट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी एक साइड मुझे बता दी गई है 8 सेंटीमीटर है। आई वांट टू फाइंड द एरिया। एरिया कैसे निकलता है ट्राइंगल का? हमें तो एक ही फॉर्मूला याद है, मतलब मेजॉरिटी लोगों को, मैं व्हेन आई से हमें तो आई मीन द मेजॉरिटी ऑफ अस जो ओ लेवल मैट्रिक या हाई स्कूल बैकग्राउंड से आए हैं, हमने तो सीखा हुआ है जी ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट कर दो। अब यहाँ पे बेस अगर 8 है, हाइट क्या है? हाइट तो निकालनी पड़ेगी। फिर जिन लोगों की मैथ अच्छी है या जो ए लेवल में या एफएससी में मैथ पढ़ रहे हैं वो मतलब सोच रहे होंगे, हाँ 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 मुझे तो पाइथागोरस थ्योरम भी आता है, मुझे तो साइन रूल भी आता है, मैं तो वो सारी चीजें निकाल के भी कर सकता हूँ। वेल दैट्स गुड बट दैट्स नॉट गुड इनफ फॉर द एसएटी। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, आप लोग साइन रूल लगाएं, हो सकता है ये नॉन कैलकुलेटर क्वेश्चन पोर्शन में आता, आपके पास इतना टाइम ही ना होता, फिर आप क्या करते हैं? सो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आई थिंक काफ़ी लोगों ने ये देखा भी होगा, बट आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इट अप ऑन द टेबल कि दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड रियली नो। सो आपको पता होना चाहिए कि इफ़ यू वांट टू फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, वन ऑफ द फॉर्मूलाज दैट यू कैन यूज इज एस स्क्वायर ओवर 4 टाइम्स अंडर रूट 3। सो एस यहाँ पे क्या है? एस इज द लेंथ ऑफ द साइड। सो अब मैं इसको मेंटली करने की कोशिश करता हूँ। साइड की लेंथ क्या है? 8 है। 8 स्क्वायर क्या हो गया? 64। 64/4 होता है 16। 16 अंडर रूट 3 इज माय आंसर। सो मैंने इसको 10-15 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर लिया। दैट्स हाउ आई मीन दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ कैंडिडेट टू टू अप्लाई द बेस्ट पॉसिबल एंड स्मार्टेस्ट पॉसिबल मेथड इन अ गिवन क्वेश्चन। ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू टेक अ मिनट हियर एंड सी से कि जिन लोगों, मतलब those of you who were catching up very quickly on what I was doing, that's very good news because I think you're on the right track and this is exactly that you need to know for the SAT. But for those जो जिनको लग रहा है कि अभी इन 4 सवालों में से मुझे एक भी नहीं आता था, well that was the purpose. मैं बताना चाह रहा था कि सवाल जितना भी मुश्किल हो, उसको फिर भी सीखा जा सकता है और बहुत थोड़े टाइम में सीखा जा सकता है। ये 4, 5, 6 फ़ॉर्मूलाज़ हर टॉपिक के आपको पता हों तो यू आर गुड टू गो।
So don't be afraid, don't be scared. We will cover uh, tips and tricks like this in the sessions that will come. अच्छा, so before I move to my first topic, मैं कुछ बात करना चाह रहा था जनरली टाइम मैनेजमेंट एंड स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग के बारे में भी, विद स्पेशल फोकस टुवर्ड्स मैथ. सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैथ के लिए आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्प आउट कर सकती हैं इन इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, इन इफ़ेक्टिव प्रिपरेशन, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए? सिलेबस वगैरह तो हम कवर कर ही लेंगे, लेकिन व्हाट आर सम प्रीरेक्विजिट्स दैट यू नीड टू हैव? पहली चीज़ तो ये है कि आई वॉक्ड यू थ्रू द टेस्ट पैटर्न. सो अभी तो मैंने एक क्विक ओवरव्यू दिया, बट टेक टाइम टू लुक एट द टेस्ट पैटर्न इन डिटेल. आपको पता होना चाहिए है कि मैं, मतलब यू शुड बी एक्सपेक्टिंग टू सी अ कैलकुलेटर पोर्शन टेस्ट, और आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितने सवाल हैं, मेरे पास कितना टाइम है, हर सवाल के लिए कितना टाइम है. सो नोइंग द पैटर्न इन एडवांस, बिलीव मी, सॉल्व्स एटलीस्ट 20% ऑफ योर प्रॉब्लम्स. अगर एक ऐसे बच्चे को बिठा के एसएटी कराया जाए जिसने कभी पैटर्न ही ना देखा हो, या जिसको पता ना हो कि अच्छा वो आगे करके देख रहा हो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, और दूसरी तरफ उसको बिठाया हो जिसको पता हो, जिसके फिंगर टिप्स पे हो कि अच्छा अभी मैं 23rd सवाल पे हूँ, मुझे पता है कि 15 सवाल और रह गए हैं, 38 आते हैं टोटल. सो नोइंग द पैटर्न इन एडवांस गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर पैटर्न पता है तो सवाल भी खुद ब खुद समझ आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन होगा ये कि इट विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस, यू नो दैट यू नो व्हाट यू आर अप टू, यू नो व्हाट यू आर डूइंग, और फिर आप ड्यूरिंग द टेस्ट भी ज्यादा बेहतर फील करते हैं. Learn more shortcuts, use them, but don't misuse them. So this is what I quote in every workshop that I conduct anywhere. So yes, I'm going to give you some shortcuts, um, but don't misuse them. Now, what do I mean कि उनको misuse ना करें? जो शॉर्टकट्स मैं आपको बताऊंगा वो सर्टेन केसेस पे एप्लीकेबल होते हैं. इट्स गुड टू नो देम. बट व्हाट आई हैव सीन ओवर द इयर्स इज कि जब स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स शॉर्टकट सीख लेते हैं, वो हर क्वेश्चन में ज़बरदस्ती शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं. वो रेशियो वाला शॉर्टकट परसेंटेज वाले सवाल पे लगाएंगे, वो परसेंटेज वाला शॉर्टकट वर्क प्रॉब्लम्स पे लगाएंगे. सो मतलब हैव दैट नॉलेज विद यू, बट नो वे टू अप्लाई इट. नो द शॉर्टकट्स बट डोंट मिसयूज देम. हर जगह उसको लगाने के चक्कर में सिंपल सवाल को भी कॉम्प्लिकेटेड ना कर दो. सो कुछ सवाल वैसे ही इतने सिंपल होंगे कि 15 सेकंड में हो जाए बगैर किसी शॉर्टकट के. कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई शॉर्टकट नहीं होगा. आप कुछ सवालों पे शॉर्टकट से टाइम बचाओगे और कुछ लंबे सवाल होंगे जो आपको करने पड़ेंगे. सो देन डोंट ट्राई एंड थिंक कि इसके अंदर भी कुछ होना चाहिए, मैंने कोई ना कोई शॉर्टकट लगाना है. डोंट मिसयूज इट. अंडरस्टैंड द यूज ऑफ अ कैलकुलेटर. This is also something which is a topic of debate with a lot of students that I teach. कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं कैलकुलेटर के साथ. वो कहते हैं कि जी मतलब मुझे तो अगर 10+10 भी करना है ना तो मैं कैलकुलेटर पे जल्दी कर लूंगा, मैंने अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना. अगर मैंने 10 × 15 करना है तो आई वुड रादर यूज अ कैलकुलेटर. बट आई थिंक कैलकुलेटर ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग एट टाइम्स आपकी स्पीड को हिंडर कर रहा होता है. बिकॉज मतलब बिलीव मी, मैं पिछले तकरीबन 10 साल से इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ अपने अंदर भी दूसरों के अंदर भी. जब आप फ्लो में कैलकुलेटर यूज कर रहे होते हैं ना, तो आप एट टाइम्स बहुत सिंपल कैलकुलेशंस को भी ना बस उसी फ्लो में स्टेप्स में कैलकुलेटर पे करते रहते हैं. वो ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है बजाय इसके कि आप उसको पेपर पे लिखें. अक्सर चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड यू विल गेट टू द आंसर मच क्विकर. सो think about it, where a calculator is of help and where is it a hindrance. कुछ लोगों की मेंटल मैथ बेहतर होती है, गुड. जिनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिपेंडेंसी कैलकुलेटर से कम करें. लीव द डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर द एंड. अच्छा, अब इसका क्या मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चंस फॉर द एंड छोड़ दें. एसईटी के अंदर यू आर अलाउड टू मूव बैक एंड फोर्थ बिटवीन द क्वेश्चंस इफ यू आर ऑन द सेम सेक्शन. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सेक्शन नंबर 3 पे हूँ तो मैं सेक्शन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता, मैं छोड़ देता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 पे चला जाऊंगा. आई विल कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 लेटर. सो डोंट बी अफ्रेड टू लीव डिफिकल्ट क्वेश्चंस इन द एंड. आप अगर आसान सवाल पहले अटेम्प्ट करते जाएंगे, अगेन इट इज मतलब द एसएटी टेस्ट मेकर्स आर प्लेइंग विद योर माइंड. वो शुरू के हो सकता है कोई सवाल मुश्किल दे दें जिससे आप प्रेशर में आ जाओ, जिससे आप अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओ. बट इफ यू आर एबल टू बीट दैट, आपको पता हो कि अच्छा आगे आसान सवाल आएंगे, आप पहले उनको कर लो, आप मोटिवेट हो जाओगे. ये सेल्फ मोटिवेशन मतलब एट द फेस ऑफ इट आपको रियलाइज भी नहीं हो रही होती, लेकिन ये एट द बैक ऑफ योर माइंड दिस इज ऑलवेज इन टू प्ले.
जब आपको पता होगा कि मेरे पास अभी 15 मिनट रहते हैं और मेरे पास सिर्फ 2 मुश्किल सवाल रह गए हैं, आप वो सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब आपने टेस्ट शुरू किया होगा और मुश्किल सवाल आ जाएगा, तो आप उसपे 15 मिनट भी ज़िद में ज़ाया कर दोगे। सो अक्सर लोग स्टबर्न होके मुश्किल सवाल आता है, नहीं जी मैं तो सॉल्व करूँगा, ये कैसे हो सकता है कि सैट का दूसरा सवाल ही नहीं मेरे से सॉल्व हो रहा। सो डोंट गेट स्टबर्न देयर। डोंट यू नो डिस्ट्रॉय योर एसएटी स्कोर जस्ट बिकॉज़ आप एक क्वेश्चन को ज़िद के पीछे नहीं छोड़ रहे। सो डू लीव देम फॉर द एंड। इट्स ओके अगर आसान सवाल भी नहीं हो रहा, होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ आज तक हो जाता है। इट्स कंप्लीटली ओके, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू इट लेटर। एंड दिस स्टेटमेंट इज आई मीन आप लोगों को लग रहा होगा दिस इज ओवर सेड, बट आई वांट टू से इट अगेन। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करती क्या है? हम शुरू से सुनते आए हैं मैथ नहीं अच्छी बच्चे की, प्रैक्टिस कराएं। मैथ नहीं अच्छी, प्रैक्टिस करें, सब ठीक हो जाएगा, प्रैक्टिस करें। होता क्या है? खास तौर पे अगर मैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग की एसएटी की बात करूं, जब आप बहुत ज़्यादा सवाल प्रैक्टिस करते हैं, आपकी एक इंट्यूशन डेवलप हो जाती है। जैसे जब आप ड्राइविंग करते हैं, आप में से कुछ लोग ड्राइविंग करते होंगे। जब शुरू में बंदा सीख रहा होता है, बड़ा हम कॉन्शियस होते हैं, पहला गियर लग रहा है, दूसरा गियर लग रहा है, अब रिवर्स लग रहा है। जब आपको ड्राइव करते हुए कुछ अरसा हो जाता है, यू काइंड ऑफ फॉरगेट एंड यू आर इन द फ्लो। आपको पता भी नहीं होता कि मैंने मतलब तीसरा गियर लगा दिया हुआ है एंड यू डोंट रियलाइज इट। सेम हैपेंस फॉर स्विमिंग। जब आप सीख रहे होते हैं, आप बड़ा सोचते हैं मैं कैसे करूँ, बट वंस यू लर्न हाउ टू डू इट, आप फ्लो में आ जाते हैं। सेम सेम इज एप्लीकेबल टू एसएटी मैथ। आप जब इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि इंट्यूशन डेवलप हो जाती है, बिफोर यू रीड द एंटायर क्वेश्चन यू कैन अंडरस्टैंड। आप पूरा सवाल पढ़ने से पहले ही आपको पता चल जाएगा एग्जामिनर मेरे से क्या पूछने वाला है। सो दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस नाउ। मैं कोई नया एसएटी का पास पेपर आता है, आई लुक एट इट, मैं पहली लाइन पढ़ के अंदाजा लगा लेता हूँ कि अभी इसके अंदर एंड में क्या पूछा होगा। दिस इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू टू अचीव एज वेल। आप जब ज्यादा सवाल अटेम्प्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी एक इंट्यूशन बैठ जाएगी। यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा जी सवाल की 2 लाइनें, ये वही चीज पूछ रहा है जो मैंने पिछले टेस्ट में भी अटेम्प्ट की थी। किसी और सवाल पे जाएंगे, कोई ग्राफ देखेंगे, ओ ये तो वैसा ही ग्राफ है जो मैंने देखा था, मैं पढ़ता हूँ, इसने भी शायद वही पूछा हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स वही होगा। सो दिस अगेन गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। इसको भी ज़हन में रखें। दिस इज व्हाई प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। We have about 25 minutes and we're going to cover this topic, the first one which is called ratios. So हमारा पढ़ने का तरीका क्या होगा for the next few days? हम इस तरह से पढ़ेंगे कि for every topic that I will teach you, I will try and break it into different types of questions. So मैं आपको कह देता हूँ कि आज हम रेशियो का टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें 5 या 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे। मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन की टेक्निक बताऊंगा एंड देन मैं आपको हर टाइप ऑफ क्वेश्चन का एक एग्जांपल करवा दूंगा। एंड देन होपफुली इंशाल्लाह व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द एसएटी और आप रेशियो का कोई सवाल अटेम्प्ट करेंगे, तो वो इन्हीं 5-6 टाइप्स में से कोई ना कोई सवाल होगा, या तो डायरेक्टली या इन्हीं को मिक्स करके होगा। सो 5 या 6 टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम आज कवर करेंगे, please make sure that you take notes and you get a full grasp on these 5 and 6 types, because these make the fundamentals of the ratio topic in SAT. ठीक है जी। So let's look at type 1. जैसे मैंने कहा हम different types में break करेंगे. So type number 1. This talks about diverse and direct and inverse relations. अच्छा जी। अब direct relation क्या होता है, inverse relation क्या होता है, इसके ऊपर थोड़ी सारी बात कर लेते हैं। डायरेक्ट रिलेशन ये होता है बिटवीन टू क्वांटिटीज कि अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ाऊं, दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। सो इंक्रीजिंग वन इंक्रीजेस द अदर एज वेल। सो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, द नंबर ऑफ men who are making a table and the number of tables that they will make. So जितने ज्यादा लोग मैं कर दूंगा, वो एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में उतने ज्यादा टेबल बना लेंगे। सो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन। इनवर्स रिलेशन ऑन दी अदर हैंड क्या होता है, इफ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी द अदर डिक्रीजेस। एक को बढ़ाया, दूसरी क्वांटिटी कम हो गई। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, द नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ हाउस एंड द टाइम दैट इट विल टेक टू बिल्ड द हाउस। जितने मैं ज्यादा लोग कर दूंगा, जितने ज्यादा मजदूर लगा दूंगा, वो उतना जल्दी घर बना लेंगे। सो एज द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज हु आर बिल्डिंग द हाउस, द अमाउंट ऑफ टाइम विच इज द सेकंड क्वांटिटी विल डिक्रीज। सो दिस इज एन इनवर्स रिलेशन। पहले तो हमने अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली डायरेक्ट और इनवर्स होता क्या है। अब देखते हैं कि सवालों में कैसे आ सकता है। सो आपने ये टेक्निक याद रखनी है, वेयर एवर यू सी या वेयर एवर यू ऑब्जर्व और एनालाइज अ डायरेक्ट रिलेशन,
योर माइंड शुड इमीडिएटली पॉइंट यू टू द डायरेक्शन कि आपने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप स्क्रीन पे साइन भी देख सकते हैं। Wherever you see that it is an inverse relation, you will multiply horizontally. Abhi, it will make more sense when I display the question in front of you. Now, this is an actual example from the SAT. Question ko padh lein, I'll give you 10 seconds to read it through. If 500 grams of food can feed 20 animals for 7 days, how long will 200 grams of food feed 14 animals? अब इफ यू नोटिस व्हाट्स हैपनिंग हियर इज कि यहाँ पे 3 आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। पहली क्या है? द अमाउंट ऑफ फूड, जो कि ग्राम्स में दी हुई है। दूसरी क्या है? नंबर ऑफ एनिमल्स, जो कि 20 है। तीसरी क्या है? द नंबर ऑफ डेज, जो कि 7 है। सो पहला स्टेप तो ये है कि आप तीनों चीजें लिख लें, फूड, एनिमल्स, डेज। फिर आप उसके नीचे टेबल फिल कर लें, जस्ट लाइक दिस। अच्छा जी, सो मैंने टेबल बना लिया जिसके अंदर मैंने लिख लिया कि मेरे पास पहले लेफ्ट साइड पे फूड है, सेंटर में एनिमल्स है, 7 एंड राइट साइड पे डेज है। सो 500 ग्राम्स ऑफ फूड फीड 20 एनिमल्स फॉर 7 डेज, उसकी एक लाइन बन गई। 200 ग्राम्स ऑफ फूड 14 एनिमल्स को कितने दिन के लिए करेगा? डेज निकालने हैं, आई यूज्ड एक्स एज एन अननोन, मैंने ये टेबल बना लिया। Now what I have to do, I have to establish a relationship between the quantities. So मैं सबसे पहले लेफ्ट साइड वाली दो को देखता हूँ, फूड एंड नंबर ऑफ एनिमल्स। सो थिंक अबाउट इट, मतलब थिंक अबाउट इट इन योर हेड। जैसे जैसे फूड बढ़ता जाएगा उतने ज्यादा एनिमल्स खाना खाएंगे, उतने कम एनिमल्स खाना खाएंगे, ज्यादा खाएंगे। द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ फूड, उतने ज्यादा एनिमल्स खा लेंगे। तो दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन। जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे, अब हम सेकंड और थर्ड को देख रहे हैं, नंबर ऑफ एनिमल्स एंड नंबर ऑफ डेज। जितने ज्यादा एनिमल्स होंगे वो खाना उतने ज्यादा दिन चलेगा या उतने कम दिन चलेगा? उतने कम दिन चलेगा, बिकॉज सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ खाना है। एनिमल्स ज्यादा होते जाएंगे तो डेज कम हो जाएंगे जितने दिन में खाना खत्म होगा। ठीक है, सो हमने स्टैब्लिश कर लिया कि जी हमारे फूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन, फूड और एनिमल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। वहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 500 को 14 से, 200 को 20 से, और फिर हमने कहा एनिमल्स और डेज का डायरेक्ट रिलेशन है, वहां इनवर्स रिलेशन है, वहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगा दी। ठीक है, अब हमारे पास एक, कह लें 3 कॉलम्स बन गए हैं और हमने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया। नाउ ऑल आई हैव टू डू टू फाइंड एक्स इज टू मल्टीप्लाई अलोंग द लाइन। मल्टीप्लाई अलोंग द लाइन का क्या मतलब है? आप लेफ्ट मोस्ट से शुरू हो जाएं जहां पे 500 लिखा हुआ है। 500 से एरो जा रहा है 14 पे, सो 500 टाइम्स 14। 14 से एरो जा रहा है एक्स पे, सो टाइम्स एक्स। पहली लाइन कंप्लीट होगी, इज इक्वल टू लगाएं बीच में। दूसरी लाइन लिखें, 200 टाइम्स 20 टाइम्स 7। एक अननोन आ गया आपके पास, एक ही इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, यू विल रीच द आंसर x इज इक्वल टू 4 डेज। ठीक है, सो अभी तो मैं आपको समझा रहा था, दिस वाज प्रॉब्ली द फर्स्ट टाइम फॉर सम ऑफ यू जो कि डायरेक्ट और इनवर्स का इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और स्ट्रेट लाइन मल्टीप्लिकेशन समझ रहे थे। बट वंस यू आर यूज्ड टू इट, आप ये 10 से 15 सेकंड में, 20 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे, बिकॉज यू विल इमीडिएटली नो, अच्छा ये 3 क्वांटिटीज हैं, इन तीनों को लिखा, डायरेक्ट रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। 30 seconds कह लें आप मोस्ट। ठीक है, so this is the first type of question that you can see. Let's have a look at the second type of question. Excuse me. This is about the conventional ratio questions जो आपके पास होते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल रेशियो क्वेश्चंस क्या होते हैं? इसके अंदर जैसे आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल जो रेशियो क्वेश्चन होते हैं, एक क्लासरूम है, उसके अंदर द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इज 5:3। if there are 10 boys, how many girls are there? या if there are 50 total students, कितने boys है, कितनी girls है? So ये आपने जो mostly देखा होगा, but this is going to be slightly different. है वही कन्वेंशनल रेशियो क्वेश्चन ही, लेकिन इसको मैं सॉल्व करने का आप लोगों को एक फर्क तरीका सिखाऊंगा। फर्क तरीका सीखने का ये फायदा होगा कि हमारी जो अभी टाइप्स आगे आनी है वो आप लोगों के लिए समझनी आसान हो जाएंगी। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल। अ बॉक्स कंटेन्स बेसबॉल्स एंड गोल्फ बॉल्स। If the ratio of baseballs to golf balls is 2:3, दो किस्म की बॉल्स हैं, एक बेसबॉल है, एक गोल्फ बॉल है, उनका जो रेशियो है वो 2:3 है। सिंपल, मैंने बेसबॉल गोल्फ बॉल लिख दिया, 2:3 लगा दिया, सही है।
अब वो कह रहा है कि देयर आर 30 टोटल बेस बॉल्स, जो जो बेस बॉल्स हैं वो 30 हैं, और मैंने निकालना है हाउ मेनी गोल्फ बॉल्स आर देयर. So what I want you all to understand, yeah, to learn, if you're doing it for the first time, whenever you see a ratio question, try and convert it from a ratio to an actual quantity. वो हम कैसे कर सकते हैं? We can do that by introducing a variable. So अगर आप नोटिस करें, अभी मैंने 2 के साथ एक छोटा सा x लगा दिया है, इसी तरह मैंने 3 के साथ एक छोटा सा x लगा दिया है. So अब मैं रेशियो से चला गया हूँ एक्चुअल क्वांटिटी पे. So now I know कि the number of baseballs is 2x and the number of golf balls is 3x. सही है. सो रेशियो से मैंने एक्चुअल नंबर पे कन्वर्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑब्वियसली एक्स की टर्म्स में है फिलहाल. सो अब अगर पहले मुझे कोई कह रहा था द रेशियो इज 2:3, अब मुझे किस तरह से बताया जाएगा कि 2x बेसबॉल्स का नंबर है, 3x गोल्फ बॉल्स का नंबर है. ये एक्चुअल नंबर आ गया. अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या इंफॉर्मेशन गिवन थी? देयर आर 30 टोटल बेसबॉल्स. ठीक है, 30 टोटल बेसबॉल्स हैं, और इन टर्म्स ऑफ एक्स मेरे पास कितनी बेसबॉल्स हैं? अभी मैंने बताया था 2x बेसबॉल्स हैं. सो 2x बेसबॉल्स इज इक्वल टू द एक्चुअल नंबर व्हिच वाज गिवन इन द क्वेश्चन, वो 30 है. सो 2x इज इक्वल टू 30 रख दूंगा, वहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 15. अब मेरे पास x आ गया. नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ पावर. अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ. अब वो अगर मेरे से टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पूछे, मैं वो भी बता सकता हूँ. 2x प्लस 3x करूंगा, क्योंकि बेसबॉल 2x है, गोल्फ बॉल 3x है, 5x हो गया, x की वैल्यू डाली आ गया. वो मेरे से डिफरेंस बिटवीन द टू बॉल्स पूछे, मैं माइनस करके बता दूंगा. 3x माइनस 2x x होता है, x की वैल्यू मेरे पास है. वो मेरे से प्रोडक्ट या ट्वाइस द नंबर ऑफ बेसबॉल्स पूछे, एनीथिंग दैट द एग्जामिनर वांट्स टू नो, आई कैन गिव द आंसर बिकॉज नाउ आई नो द एक्चुअल क्वांटिटीज. मैंने x निकाल लिया है. अब पूछा क्या हुआ था, उसने गोल्फ बॉल्स पूछा था. सो गोल्फ बॉल्स कितनी है इन टर्म्स ऑफ x? 3x है. x की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 15, तो मैंने सिंपली प्लग इन कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 45. ठीक है. सो कन्वेंशनल रेशियो क्वेश्चन को हमने थोड़ा सारा चेंज करके एक डिफरेंट तरीके से समझा. लेट्स हैव अ लुक एट टाइप 3, चेंज ऑफ रेशियो. अच्छा, ये एसएटी के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली आ जाता है. ये सवाल हमें किस तरह की सिचुएशन देता है? वो कहता है जी देयर वाज एन इनिशियल सिचुएशन एंड देन देयर वाज अ फाइनल सिचुएशन. इनिशियल सिचुएशन के अंदर कुछ होना चाहिए था, but then something else happened and the situation changed to what I refer to as the final situation. और इस सारे प्रोसेस में रेशियो चेंज हो गया. अब रेशियो चेंज करके वो आपसे कोई ना कोई अननोन मांग लेगा. एक क्वेश्चन पढ़ें, आई विल एक्सप्लेन कि इसको किस तरह से करना है. टेक 10 seconds, 15 seconds to go through the question, please. Okay, ठीक है. A sports store ordered an equal number of white and yellow balls. So एक sports store है जिसने अपने सप्लायर को ऑर्डर किया कि मुझे व्हाइट और येलो बॉल्स चाहिए इन इक्वल क्वांटिटी. बट द कंपनी डिलीवर्ड 30 एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल्स बाय मिस्टेक. आनी सेम चाहिए थी, लेकिन जो व्हाइट बॉल्स हैं वो 30 एक्स्ट्रा आ गई. और एक्स्ट्रा आने से हुआ क्या? मेकिंग द रेशियो ऑफ व्हाइट बॉल्स टू येलो बॉल्स 6:5. सो रेशियो चेंज होके बन गया 6:5. अब वो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी टोटल बॉल्स डिड द स्टोर ओरिजिनली ऑर्डर. साथ साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करें, मैं भी आपको थोड़ी सारी गाइडेंस देता जाता हूँ. इनिशियल सिचुएशन थी, सेम नंबर ऑफ बॉल्स आनी चाहिए थी. हुआ ये 30 एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल्स आ गई. रिजल्ट क्या हुआ? रेशियो चेंज हो गया. जहां पे ओरिजिनल रेशियो 1:1 होता है, अगर कोई चीज सेम हो तो 1:1 होना चाहिए था, वो 6:5 बन गया. अब हमने निकालना ये है कि ओरिजिनली एक्चुअल नंबर ऑफ बॉल्स क्या थी जो स्टोर ने ऑर्डर की थी. सो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करता हूँ. पहले स्टेप के अंदर मैं एक रेशियो बना लेता हूँ व्हाइट और येलो का, और मैं कहता हूँ इनिशियल सिचुएशन के अंदर 1:1 होना चाहिए था. लेकिन अभी मैंने क्या सिखाया था? जब भी आप रेशियो का सवाल देखें, आपने 1 के साथ या 2 के साथ जो भी नंबर है उसके साथ x अटैच कर देना है. सो कैन आई से कि एक्चुअल नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स जो ऑर्डर हुई थी वो 1x थी, एक्चुअल नंबर ऑफ येलो बॉल्स जो ऑर्डर हुई थी वो भी 1x थी. x लगा दिया साथ, जो अभी हमने सीखा. yes, I can say that this is the initial situation, but then what happened? 30 एक्स्ट्रा व्हाइट बॉल्स आ गई. सो आई कितनी आनी चाहिए थी? x, बट आ गई x प्लस 30. येलो कितनी आई? येलो तो उतनी आई जितनी ऑर्डर की थी, सो येलो रिमेन्ड x.
So now if you observe the second line in the ratio part that I have showed on the screen, आप देखें अब updated ratio क्या है in terms of x, x plus 30 white balls आ गई हैं, yellow balls x आ गई हैं. अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, white balls divided by yellow balls, तो ये मुझे वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6:5. उन्होंने कहा था ना मेकिंग द रेशियो 6:5. So what I'll do is I'll say white ball divided by yellow ball. So x plus 30 over x is equal to 6/5. यहां से मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई 150. लेकिन गो बैक टू द क्वेश्चन, थिंक अबाउट व्हाट द एग्जामिनर वांटेड यू टू फाइंड. 150 निकाल के 150 को नहीं चूज कर देना. ऑलवेज सी कि ये भी एक ट्रैप होता है कि आप मिडिल में जब वर्किंग कर लेते हो आपको लगता है यू रीच द आंसर, बट सवाल में पूछा कुछ और होता है. पूछा हुआ था टोटल नंबर ऑफ वॉल्स. सो 150 हमारे पास आई थी x की वैल्यू. सो अगर आप अब पहली लाइन पे आ जाओ, व्हाइट बॉल्स कितनी थी 1x व्हिच मींस 150, येलो बॉल्स कितनी थी 1x व्हिच अगेन मींस 150, तो मिला के ये 300 बॉल्स थी. सो दिस इज योर आंसर फॉर द रेशियो क्वेश्चन, चेंज ऑफ रेशियो क्वेश्चन. ठीक है, चलें. I'm just deliberately waiting on the slides for a few seconds ताकि अगर कोई लोग नोट्स बना रहे हैं तो वो साथ साथ बना लें. ठीक है जी, let's move to type number 4. This talks about finding three ratios. अच्छा, थ्री रेशियोज निकालने का क्या मतलब है कि अगर आपको टू सेट्स ऑफ टू रेशियोज गिवन है, आपको जैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन है A:B, इसको मैं अपने पेन पैड पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ज़्यादा इजी हो जाएगा. एक सेकेंड. अच्छा जी, सो आपको गिवन है A:B, इसकी वैल्यू है आपके पास 3/2. ठीक है. दूसरी आपके पास वैल्यू है B:C की, और वो गिवन है आपके पास 4:5. अब आपने निकालना क्या है, आपने A:B:C निकालना है. सो आपके पास टू सेट्स ऑफ टू रेशियोज थे, लेकिन आपने उनको यूज करके व्हाट यू वांटेड टू फाइंड वाज वन सेट ऑफ थ्री रेशियोज, A:B:C. इसके लिए मेथड दैट वी कैन यूज इज कॉल्ड द W मेथड. W बिकॉज अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू नोटिस दैट आई ड्रॉ अ W. W मेथड से यू कैन रीच थ्री रेशियोज गिवन टू सेट्स ऑफ टू रेशियोज. देखते हैं कैसे. सो मैंने W मेथड लिखने के लिए, आप स्लाइड पे भी साथ साथ देखते जाए, मैं भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. मैंने लिखा A:B, अभी मैंने अल्फाबेट्स ही लिखे, और मैंने उसकी बिल्कुल निचली लाइन में B के नीचे ही B को लिखना है. दिस इज इंपॉर्टेंट. सो B के बिल्कुल नीचे B आएगा, कॉमन वाला एक वर्टिकल लाइन में होना चाहिए. सो B के बिल्कुल नीचे दूसरा B आ गया. ठीक है, एंड B:C लिख दिया. What I will do now is that I will replace these alphabets with the actual numbers. देखें, अब 3:2 लिख दिया मैंने A:B की जगह, और B:C की जगह मैंने 4:5 लिख दिया. अब मैंने लाइंस लगा ली. आई सॉर्ट ऑफ ड्रू अ W. सो अभी मैं दिखाता हूँ किस तरह से W बन रहा है. ये देखें, 3:2 था, और यहाँ पे 4:5 था. मैंने बेसिकली यूं W सा बना लिया. ठीक है, यूं लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है. सो अब हम करेंगे क्या, वी विल जस्ट मल्टीप्लाई टू नंबर्स एट अ टाइम. मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, मेरे पास एक आंसर आ गया. अब मैं अगले दो को करूंगा, 2 और 4 को, और फिर मैं आखिरी दो को करूंगा, 2 और 5 को, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा. सो 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, आप यहाँ से देख लें लेफ्ट साइड पे जहाँ पे मैंने अपने पेन से बनाया. सो 3:4 आपके पास 12 आ गया. 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 आपके पास 12 आ गया. अगले दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया अलोंग द लाइन. अगले दो नंबर्स कौन से बनते थे, 4 और 2, उनको मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया. फिर अगले दो नंबर्स कौन से बनते थे, 2 और 5, 10 आ गया. एंड दैट्स वेयर वी स्टॉप, बिकॉज तीन ही नंबर्स हमने निकाल सकते थे इसमें. सो 12:8:10 आ गया. बट रेशियोज आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, इन देयर सिंपलेस्ट टर्म. सो इन 12, 8 और 10 में 2 कॉमन था, सो मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, एंड आई रीच्ड 6, 4 एंड 5. ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ A:B:C. टाइप 5 पे चलते हैं, 4 और मोर रेशियोज. अच्छा, वी हैव 2 more types to cover. उसके बाद आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस. तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन टेक इनटू द चैट, एंड दिस इज अ मैसेज टू माय टीम. यू कैन स्टार्ट सेंडिंग देम टू माय व्हाट्सएप नंबर एज वेल. ठीक है,
सो 4 और मोर रेशियोज़ अगर आपने निकालने हैं तो हाउ यू कैन डू दैट। ये मैंने आपको प्रिपरेशन फ्लो जो लोग शुरू से हमारे साथ क्लास में हैं उनको मैंने बताया था कि आई विल पार्क दिस राइट नाउ, लेकिन मैं इसको दोबारा रिविज़िट करूँगा। सो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली दैट। एक्सप्लेन तो मैंने कर दिया था, बट लेट्स जस्ट वॉक थ्रू इट टुगेदर अगेन और टेक्नीक देखते हैं क्या है। सो अब मैंने 4 से भी 5 रेशियोज़ पे ले गया हूँ ताकि एक ही दफ़ा सबसे मुश्किल सवाल कर लें, ताकि इसके बाद जो भी आए वो आपको ईज़ी लगे। आपको इक्वेशन गिवन है 2a इज इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 6c इज इक्वल टू 8d इज इक्वल टू 10e, और आपको क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड a रेशो b रेशो c रेशो d रेशो e। 5 रेशियोज थोड़ा अनरियलिस्टिक है, 5 तक नहीं आता, 4 तक आता है, बट लेट्स स्टिल ट्राई एंड डू 5 रेशियोज। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व ऐसे करते हैं, आप जैसे सवाल में लिखा हुआ है रेशियो आप लिखा रहने दें। 2a is equal to 4b is equal to 4 is equal to 6c is equal to 8d is equal to 10e, यहाँ तक आप लिखा रहने दें। अब आपने क्या करना है, आपने इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लेना है। सो अगर आप नोटिस करें नंबर्स कौन-कौन से थे हमारे पास, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आप इन सारे नंबर्स का एलसीएम ले लें। एलसीएम तो लेना आई एम श्योर सबको आता होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एलसीएम इज़ 120। स्लाइड पे भी डिस्प्ले हुआ है। अब आप देखें, मैंने ये सारी इक्वेशन बनाई हुई थी जो क्वेश्चन में गिवन थी। मैंने इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया 120 से। ठीक है, सारों के नीचे मैंने अंडरलाइन का वो लगाया, हर टर्म को 120 से डिवाइड करता गया। अब क्या होगा, अब आप देखें एलसीएम लेने का फ़ायदा क्या हुआ है? एलसीएम लेने का ये फ़ायदा हुआ है कि हर न्यूमरेटर कैंसल हो रहा है डिनोमिनेटर से। जैसे पहले केस में 2a डिवाइडेड बाय 120 था, तो ये 2 और 120 कैंसल हो गए, ऊपर सिर्फ 1a रह गया, नीचे 60 आ गया। इसी तरह 4 और 120 भी कैंसल हो जाएँगे, सिर्फ ऊपर 1b रह जाएगा। न्यूमरेटर सारे 1-1 हो जाएँगे, डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ जाएँगी। मैं कैंसल कर दूँगा जब इसे, और फिर देखिए न्यूमरेटर सारे 1-1 हो गए हैं और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास अलग-अलग नंबर्स आ गए हैं, 60, 30, 20, 15, 12। अब जो डिनोमिनेटर में आपके पास आ चुका है, दिस इज़ नथिंग बट द रेशियो दैट वाज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन। 2a इज़ इक्वल टू 4b इज़ इक्वल टू 6c इज़ इक्वल टू 8d इज़ इक्वल टू 10e में से अगर आपने a रेशियो, b रेशियो, c रेशियो, d रेशियो, e निकालना है, न्यूमरेटर के अंदर आपके पास ये सारा कुछ आ चुका है, डिनोमिनेटर के अंदर जो आ रहा है ये इन्हीं का कंपैरिजन है। सो योर आंसर इज़ 60 रेशियो 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक है जी। Let's move on to the last type. It should be type 5, but never mind. अच्छा, ये कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस आ जाती हैं। ये इन सवालों से टू बी ऑनेस्ट अगर मैं 15 साल पहले की बात करूँ, आई यूज्ड टू बी वेरी स्कैर्ड एज़ वेल। लंबी सी स्टेटमेंट आती है और ढेर सारी फ्रैक्शंस होती हैं अंदर और कुछ नहीं पता चल रहा होता, इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, निकालना क्या है, स्ट्रक्चर नहीं बन रहा होता। थोड़ा सारा यू रियली हैव टू फोकस टू अंडरस्टैंड सबसे पहले तो व्हाट द क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू टू डू। टेक 5 सेकंड्स टू रीड द क्वेश्चन प्लीज़ एंड देन आई विल वॉक यू थ्रू इट। Meanwhile, I'll have a look at some of the questions. ठीक है, सो क्वेश्चन ये है, थोड़ा जल्दी से पढ़ूंगा बिकॉज यही स्पीड आपके पास होनी चाहिए एग्जाम में रीडिंग की। If half of the number of the white mice is 1 over 8 of the total number of mice and 1 over 3 of the number of gray mice is 1 over 9 of the total number of mice, then what is the ratio of white mice to gray mice? ठीक है, सो हो क्या रहा है कि वो आपको बता रहा है पहले व्हाइट माइस के बारे में कुछ, फिर ग्रे माइस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, टोटल में से कुछ बता रहा है, डिडंट रियली गेट इट, और फिर वो एंड में क्या पूछ रहा है, मतलब लेट्स वर्क बैकवर्ड्स। ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है और फिर उससे पीछे आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने निकालना है व्हाइट माइस टू ग्रे माइस का रेशियो। अच्छा, अब जब बहुत सारी फ्रैक्शंस आ जाएं तो इसके अंदर वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स दैट यू कैन यूज इज कि आप एलसीएम लें फिर से। जैसे हमने पिछले टाइप में देखा था, एलसीएम हमें रेशियोज में हेल्प करता है बिकॉज सारी चीजें कैंसिल आउट होना शुरू हो जाती हैं। क्यों कैंसिल आउट होती हैं? बिकॉज हम ले ही उसका मल्टीपल रहे होते हैं। जब किसी चीज का मल्टीपल लेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, तो जाहिर बात है कट जाएगा, लेकिन इट मेक्स आवर लाइफ मच इजियर। वी as the SAT test experts always encourage you to try and avoid the use of algebra as much as possible. So x, y, x square इस तरह की equations में जितना जाने से बच सकते हैं बच जाए, it will take less time. So उसी से बचने के लिए एक वर्क अराउंड जो मैंने निकाला हुआ है वो ये है कि आप LCM ले लें और LCM को total quantity assume कर लें. So this is very important, note it down somewhere. In ratio questions, when you have a lot of fractions, आप LCM लें
और उस एलसीएम को टोटल क्वांटिटी सपोज कर लें। अब टोटल इस केस में एलसीएम, अच्छा एलसीएम किसका लेना है? ऑब्वियसली सारे डिनोमिनेटर्स का। सो मेरे पास सारे डिनोमिनेटर्स क्या थे? 2, 8, 3 एंड 9 थे। यहाँ पे टिप लिख भी दी, टेक एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स व्हेन यू हैव अ रेशियो क्वेश्चन विद मेनी फ्रैक्शंस। सो मैंने जब एलसीएम लिया 2, 8, 3 और 9 का, वो 72 आ गया। नाउ आई विल अज्यूम दिस टू बी द टोटल नंबर ऑफ माइस। अब देखना जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। अब मैं स्टेटमेंट को आराम से पढ़ता हूँ। इफ 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, द नंबर ऑफ वाइट माइस, सो आई कैन राइट 1/2 इंटू डब्ल्यू कह लें वाइट माइस को, इज इक्वल टू 1/8 ऑफ द टोटल नंबर। अब टोटल मैंने एज्यूम किया हुआ है 72, तो मैंने एक इक्वेशन बना ली, 1/2 इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/8 इंटू 72। अब यहाँ से 8 और 72 कैंसिल हो गया, 9 बन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, व्हाइट माइस का मेरे पास एक एज्यूम्ड नंबर आ गया 72। ये एक्चुअल नंबर नहीं है, ये एज्यूम्ड है। इसी तरह अब मैं ग्रे माइस की भी इक्वेशन बना सकता हूँ, जहाँ पे मुझे गिवन था 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ ग्रे माइस, सो 1/3 इंटू जी इज इक्वल टू 1/9 ऑफ द टोटल नंबर, सो 1/9 इंटू 72। सो वहां से मैंने एक और इक्वेशन बना ली, और यहाँ से मेरे पास ग्रे माइस का एज्यूम नंबर आ जाएगा, वो आ जाता है 24। सो अब रेशियो क्या है? ये एज्यूम्ड ही नंबर्स हैं, लेकिन एज्यूम्ड नंबर्स में से भी अगर मैं रेशियो निकालूंगा, रेशियो सेम ही रहेगा। ठीक है, रेशियो सेम ही रहता है, बिकॉज प्रोपोर्शनली हम उसको सेम लेके चल रहे हैं। सो व्हाइट हमारे पास आया था 18, ग्रे हमारे पास आया था 24, तो 18/24 इज 3/4। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स ट्राई एंड सम अप बिफोर आई टेक सम क्वेश्चंस। व्हाट डिड वी लर्न टुडे? वो शुरू वाली सारी बातें तो छोड़ दें, आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द रेशियो टॉपिक्स। So first we had a look at the first type of question which was related to direct and inverse relation. वहां पे हमने सीखा डायरेक्ट रिलेशन में भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इनवर्स रिलेशन में भी मल्टीप्लाई हॉरिजॉन्टली, और हमने उसको देखते हुए एक एक्चुअल एसएटी का सवाल सॉल्व किया। सो कीप दैट हैंडी, इसी को मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो आप होपफुली ये वाले सवाल आपसे गलत नहीं होने चाहिए। The second one that we did was conventional ratio question. So हम usually ratio question में क्या करते थे? Required ratio divided by total ratio into total quantity. ये मेथड वो है जो हमने आमतौर पे ज्यादातर लोगों ने सीखा होगा। हमने आज उसको स्लाइटली डिफरेंटली किया। हमने कहा कि हमने रेशियो के साथ काम ही नहीं करना, हमें रेशियो पसंद ही नहीं है, हमने रेशियो को एक्चुअल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर देना। सो हम एक्स लगा दिया था हमने, आपको याद होगा। सो जहाँ पे बेसबॉल और गोल्फर्स का रेशियो 2/3 था, हमने 2x एंड 3x कर दिया था उसको। सो ये टेक्निक आपने याद रखनी है। हमारे प्रैक्टिस सेशन में मैं कुछ सवाल करवाऊंगा, आपको आइडिया होगा, दिस विल बी वेरी वेरी यूजफुल। ठीक है, सो यू ऐड x इन कन्वेंशनल रेशियो क्वेश्चंस। चेंज ऑफ रेशियो में भी हमने देखा था कि यही x लगाने से हमें काफी फायदा हो गया था। इनिशियल और फाइनल सिचुएशन देख ली थी हमने। फिर हमने 3 रेशियोज निकालने देखे। इसके लिए हमने एक मेथड यूज किया था दैट वी कॉल्ड द डब्ल्यू मेथड। ठीक है, हमने एक डब्ल्यू बनाया था, 2 सेट्स ऑफ 2 रेशियोज थे, और एक हमने एक 3 सेट ऑफ रेशियो निकाला था। इसको भी प्रैक्टिस सेशन में देखेंगे, बट रिमेंबर दैट हियर यू विल यूज व्हाट वी कॉल द डब्ल्यू मेथड। फिर हमने 3 और मोर रेशियोज या 4 और मोर रेशियोज, जितने भी रेशियोज आ जाएं, वी विल डिवाइडेड बाय द एलसीएम, वो भी हमने कर लिया। एंड लास्टली इस टाइप का मैंने नाम रखा है फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज फुल ऑफ फ्रैक्शंस। इसके अंदर टेक्निक क्या है? Note down all the fractions in one area. Look at the denominators, take their LCM. LCM ले लिया, उसको टोटल क्वांटिटी समझ लें, अब उसके हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें, इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, ग्रेट। सो आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस नाउ। मुझे मेरी टीम साथ साथ कुछ बता रही थी, आई विल ट्राई टू आंसर as many as I can. I just have a couple of minutes. Why did you divide formula by 4 in equilateral triangle problem? Acha, so first of all, thank you for your question. Intuitively, you are right. It doesn't make a lot of sense. ये for बाकी सारों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिमाइंड करा दूं, ये उस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जो मैंने प्रेशन फ्लो के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिखाया था। वहां पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड थी 8 सेंटीमीटर, मैंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला बाय द वे अभी हम रिव्यू बाद में करेंगे। उनका ये सवाल है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको डिवाइडेड बाय 3 करना चाहिए था, आपने डिवाइड बाय 4 क्यों किया है? इंट्यूटिवली इतना सेंस नहीं बनाता। तो ये हमने बेसिकली फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से ही।
वहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर 4 ही बन जाता है। इसकी फ़ॉर्मूला की डेरिवेशन के लिए अभी आई डोंट वांट टू गो इंटू डिटेल्स, बट इफ यू वांट टू प्रैक्टिस व्हाट आई कैन सजेस्ट इज़ आप इसको इस तरह से करो, आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल था, हर साइड 8 सेंटीमीटर थी। आप बीच में से लाइन क्रॉस करें, हाइट निकालने की कोशिश करें। आप जब हाइट निकालने की कोशिश करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, यू विल नोटिस डिनोमिनेटर में 4 आ रहा है। दैट्स हाउ आई मतलब एक शॉर्टकट बनाने के लिए आई डिराइव्ड इट फ्रॉम दैट। सो बट डोंट वरी अबाउट इट, फॉर्मूला फिलहाल अभी आप देख लें, एंड इसकी डेरिवेशन अगर हमें टाइम मिला किसी प्रैक्टिस सेशन में वी विल हैव अ लुक एट इट। अदरवाइज मैंने आपको बता तो दिया है कि आप इसको कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। व्हाई डू यू नॉट रिकमेंड द यूज ऑफ अलजेब्रा इन सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? I do recommend the use of algebra in some type of questions, but in most type of questions, I discourage the use of algebra. उसका reason ये है कि when you introduce a lot of variables, जब आप वेरिएबल्स डाल देते हैं ना, अननोन्स डाल देते हैं ए बी एक्स वाई, तो आपके पास इक्वेशंस बन जाती हैं। जब आपके पास इक्वेशंस बन जाती हैं तो एट टाइम्स आपके पास मल्टीपल इक्वेशंस होंगी, आपको उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे अगर हम ये ग्रे माइस वाइट माइस की बात करें, कुछ लोग इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी करते हैं, व्हिच इज ऑफ कोर्स अ राइट वे, बट हमारा ऑब्जेक्टिव है टू सेव योर टाइम एज मच एज पॉसिबल। सो लेट्स ट्राई एंड गेट रिड ऑफ अलजेब्रा बिकॉज इट इज इन मोस्ट केसेस मोर टाइम कंज्यूमिंग अगर आप डायरेक्टली नंबर्स के साथ डील कर रहे हो। नंबर्स तो कैंसिल आउट होते हैं, ठा 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 करके एंड में जल्दी से आंसर आ जाता है। अलजेब्रा में इक्वेशंस बनती हैं, फिर उनको सॉल्व करना पड़ता है एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, व्हिच इज आल्सो फाइन। ठीक है, अच्छा जी, आई कैन टेक आई थिंक वन मोर क्वेश्चन एंड देन अगले सेशंस के अंदर से आप लोग अपने सवाल भेजते रहें, वी विल ट्राई एंड टाइप आउट सम मोस्ट। अच्छा, आज मेरी टीम ने ज़्यादातर आंसर्स आपको चैट पे भी रिप्लाई कर दिया होगा, बट सम आर कमिंग माय वे एज वेल। सो चैट से इफ यू थिंक आंसर हो गया है, वेरी गुड, अदरवाइज आई विल आल्सो ट्राई टू डेडिकेट सम टाइम टुवर्ड्स द एंड इन टेकिंग अ क्वेश्चन। Okay, just reading through a question. How long should I spend on SAT preparation? Acha ji. So this is the last question and I'll just wind up the class with this note as well. So देखिए, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग क्या होती है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। यस, थोड़ा रिफ्रेशर चाहिए होता है, थोड़े टॉपिक्स को दोबारा देखना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें आपको आती हैं, व्हिच मीन्स सिलेबस कवर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जिस चीज़ में टाइम लगता है और टाइम लगाना चाहिए है, वो ये है कि आप अपने आप को टाइम्ड एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करें, फुल लेंथ टेस्ट की प्रैक्टिस करें। अ, एक रूम में बैठे हैं, दरवाज़ा बंद करें, 3 आवर्स का टेस्ट पूरा अटेम्प्ट करें। आप अगर इस तरह की सेटिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आई थिंक सिलेबस कवर करने के लिए इन माय ओपिनियन अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से भी शुरू कर रहे हैं, 3 वीक्स एंड टाइम्ड एनवायरनमेंट में तकरीबन 2 हफ्ते लगा लें। सो 4 टू 5 वीक्स इज़ अ सफिशिएंट टाइम जिसके अंदर आप एसएटी की तैयारी कर सकते हैं। आप एंड बिलीव मी, मतलब आपके स्कोर में जितनी भी इम्प्रूवमेंट आनी होती है, वो पहले 4 हफ्ते में जितनी आ जाती है, मोस्ट केसेस में उतनी रहती है। फिर आप 4 हफ्ते लगाएँ, यानी कि 1 महीना लगाएँ या 6 महीने लगाएँ, वो एक ही लेवल होता है तैयारी का, इन मोस्ट केसेस। सो आप पहले 4 हफ्ते के अंदर ही अच्छी तैयारी कर सकते हैं इफ यू डेडिकेट योरसेल्फ टू इट। मैं नहीं कह रहा सारा दिन सारी रात एसएटी पढ़ते रहें, बट इवन 3-4 आवर्स अ डे, 2-3 आवर्स अ डे फॉर 1 मंथ इज़ अ गुड इनफ टाइम। ठीक है? चलें, thank you very much and in a couple of minutes we will start the SAT English session, I think in the next 10-15 minutes. Please stay here and I will see you tomorrow SAT Math के साथ एक दफ़ा फिर, and we will be covering some more tips and tricks, exciting strategies. If you have any questions, please note them down. I'll try and answer them tomorrow. All the best. Take care.